हाँ, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेस टू क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेस टू पावर 4। द फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हर एक प्रॉब्लम में हमें लिखना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। तो डेरिवेटिव का कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ये समझ में आना चाहिए सबको। dy by dx, फर्स्ट अप्लाई द फार्मूला x रेस टू n। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज n x रेस टू n minus 1, n x रेस टू n minus 1। then take the derivative of x square plus 4x plus 1। take the derivative of x square plus 4x plus 1। then again apply x raised to power n, 4 x cube minus 5x minus 2 raised to 3। then take the derivative of that function f of x raised to n। what is f of x? f of x is x cube minus 5x minus 2। कॉन्सेप्ट देखना है फिर से। यहाँ पे मैंने पहले f of x raised to n ये फार्मूला अप्लाई किया है। f of x raised to n is n x raised to n minus 1 means 3 x square plus 4x plus 1 raised to power 3 minus 1 means 2। then take the derivative of this bracket x square plus 4x plus 1। then again apply x raised to power n x raised to n minus 1, x cube minus 5x minus 2 raised to cube। then simplify this function, means this can be written as 3 into x square plus 4x plus 1 bracket square। then take the derivative of x square। derivative of x square is 2x, derivative of 4x is 4 and derivative of 1 is 0। then 4 into x cube minus 5x minus 2 bracket cube। then take the derivative of x cube। derivative of x cube is 3x square, derivative of 5x is 5, derivative of 5x is 5, derivative of 2 minus 2 कांस्टेंट 0। यहाँ पे मैंने x रेस टू n का फार्मूला अप्लाई किया है। डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज n x रेस टू n minus 1। क्लियर? ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर पहले 2x plus 4 और उसके बाद ये ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। then first write down 3x square minus 5 and then write down this bracket or this term as it is। then write down the next problem, second problem। y is equal to 1 plus 4x raised to power 5, 3 plus x minus x square raised to power 8। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स देखे वहां पे एडिशन ऑफ द टू फंक्शन था। इफ द एडिशन और द subtraction of more than two function, then take the derivative of each function। here multiplication of two function, you have to apply u into v। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा y is equal to, अगर u into v है, y is equal to u into v है, तो मुझे u into v का फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला है u into dv by dx, u into dv by dx, u into dv by dx, u into dv by dx
प्लस v इंटू डी यू बाय डी एक्स। मीन्स कैसे अप्लाई करना है देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हर एक प्रॉब्लम में लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। u मीन्स 1 प्लस 4x, 1 plus 4x raised to power 5 into derivative of this function, derivative of x raised to n. What is derivative of x raised to n is, पहले x raised to n का डेरिवेटिव लेना है। derivative of x raised to n is n x raised to 3 plus x minus x square raised to power 7। मीन्स यहाँ पे मैं f of x raised to n अप्लाई करूंगा, n f of x रेस टू n माइनस 1। लेकिन f of x क्या है, तो मुझे f of x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। व्हाट इज f of x? f of x इज 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस x प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। देन सेकंड फंक्शन है 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 8 into derivative of first function। derivative of first function means 1 plus 4x raised to power 5। तो यहाँ पे मुझे x raised to n फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। x raised to n is 5 into 1 plus 4x raised to 4, 5 1 plus 4x raised to 4 into d by dx of 1 plus 4x लेना पड़ेगा, d by dx of 1 plus 4x लेना पड़ेगा। देन ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 4x रेस टू पावर 5 इंटू 8 इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 7। देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ 3 is 0, डेरिवेटिव ऑफ x is 1, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर is मीन्स 2x, 1 माइनस 2x। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट। नाउ सेकंड ब्रैकेट इज 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 8 into ये टर्म, दिस टर्म एज इट इज 5 1 प्लस 4x रेस टू 4, 1 plus 4x raised to 4 into derivative of 4x is a 4, derivative of 4x is 4, derivative of 1 is 0। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले 8 लिखना है, उसके बाद 1 minus 2x, then 3 plus x minus x square and 1 plus 4x raised to power 5। then यहाँ पे 5 4 जा 20, उसके बाद ये दो ब्रैकेट अगर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये भी लिख सकते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। यहाँ पे हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कोशेंट रूल इज y इज इक्वल टू u बाई v। यहाँ पे मैं कोशेंट रूल लिखता हूँ, y इज इक्वल टू u बाई v है। अगर मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो dy बाई dx का फार्मूला है v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v into du by dx minus u into dv by dx, u into dv by dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल का फार्मूला है, ये क्वेश्चन का रूल का फार्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो dy by dx क्या है देखो, dy by dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इज 7 माइनस 3x, 7 माइनस 3x। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1 माइनस x into derivative of the denominator is under root of 7 minus 3x, derivative of root x is 1 upon 2 under root of 7 minus 3x, derivative of root x is 1 upon 2 under root of x। then take the derivative of 7 minus 3x, derivative of 7 is 0 and the derivative of 3x is minus 3। यहाँ पे मैंने क्वोशंट रूल अप्लाई किया है,
क्वोशिएंट रूल का कंसेप्ट है ये, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 माइनस 3x ब्रैकेट स्क्वायर, 7 माइनस 3x ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नाउ सी द सिंप्लीफिकेशन, नाउ सी द सिंप्लीफिकेशन, दिस डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये क्लियर, ये जो डिनोमिनेटर है वो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा देखो, 2 7 माइनस 3x, रूट इंटू रूट, रूट कैंसिल हो जाएगा और दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x और डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 माइनस 3x, दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस 3x, this minus and this minus become plus. Now see the concept first. Then here 2 into under root of 7 minus 3x, 2 into under root of 7 minus 3x। यहाँ पे क्या किया है देखो, मैंने पहले 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 7 माइनस 3x हो जाएगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, मीन्स प्लस 3x और ये जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये 7 माइनस 3x और 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। तो ये सिंप्लीफाई करना है, 14 माइनस 6x, 14 माइनस 6x माइनस प्लस 3x मीन्स 14 माइनस 3x। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, कैसे देखो, ये 7 टू 14 माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3x और डिनोमिनेटर में क्या करना है, ये 2, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 7 माइनस 3x और ये अंडर रूट है तो यहाँ पे 1 है और अंडर रूट में 7 माइनस 3x रेस टू 1/2, 1 प्लस 1/2। मैं आंसर डायरेक्ट लिखता हूं, 7 माइनस 3x रेस टू 3/2। कंसेप्ट देखो ये समझ में आ रहा है क्या, 1 और 7 माइनस 3x रेस टू 1/2 मीन्स 1 प्लस 1/2, द आंसर इज 7 माइनस 3x रेस टू, तो ये यहाँ पे हमने क्वोशिएंट रूल का फार्मूला अप्लाई किया था, क्वोशिएंट रूल u बाई वी, ये क्वोशिएंट रूल का फार्मूला है। क्वोशिएंट रूल का फार्मूला अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे मुझे रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x और फिर से 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव लेना है -3। तो यहाँ पे एलसीएम कैसे करना है, 2 रूट इंटू रूट, तो रूट चला जाएगा 2 7 माइनस 3x और दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस 3x और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। ये जो फैक्टर है वो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 7 माइनस 3x है, रूट 7 माइनस 3x ब्रैकेट स्क्वायर मीन 7 माइनस 3x और ये जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 7 माइनस 3x रेस टू पावर 1 एंड 7 माइनस 3x रेस टू 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 5 रेस टू 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 3 रेस टू क्यूब। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। क्वोशिएंट रूल मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया, y इज इक्वल टू u बाई वी, देन dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सेंटेंस लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, dy by dx, dy by dx यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कैसे लेना पड़ेगा, x रेस टू पावर n 5 x स्क्वायर माइनस 5 रेस टू पावर 4, यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मैंने लिया है,
फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव 2x। मैं एक ही स्टेप में लिखूंगा, यहाँ पे एक ही स्टेप में, ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू 4 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब है लेकिन उसका स्क्वायर करना है, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये देखो कंसेप्ट मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। डिनोमिनेटर मींस v इज वैल्यू ऑफ v इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट क्यूब। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है x रेस टू n x रेस टू n माइनस 1, 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू 4। फिर से मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड 5 का डेरिवेटिव 0। न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू 4 into derivative of the denominator 3 x square plus 3 bracket square, then take the derivative of x square plus 3, derivative of x square is 2x। एज चेन रूल एज वेल एज क्वेश्चन रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। क्लियर? तो अभी ये सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करना है। 5 टू जा 10x, तो पहले 10x लिखना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू 4 माइनस, यहाँ पे मुझे 3 इंटू 2 मीन्स 6x लिखेंगे, 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 6। इसमें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। वो करने की यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू पावर 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू पावर 5 लिखना है यहाँ पे। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू पावर 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू पावर 5, यहाँ पे 5 लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू पावर 5। ये सिंप्लीफिक, अभी इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेस टू पावर 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, और फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये एज इट इज आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ फिफ्थ प्रॉब्लम, y is equal to 1 plus sin square x sin square x ब्रैकेट स्क्वायर 1 plus cos square x रेस टू क्यूब। यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। u इंटू वी रूल मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये स्टेप, ये डी बाई डी एक्स मीन्स डायरेक्ट लिखेंगे 3 1 प्लस cos square x
square into again take the derivative of 1 plus cos square x. Take the derivative of 1 plus cos square x. Then 1 plus second function 1 plus cos square x bracket cube into derivative of the first function. Derivative of first function means 2. यहाँ पे मुझे x रेस टू n का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा पहले. 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 1 मीन्स 2 minus 1 मीन्स 1 आ जाएगा. देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. टेक द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. तो कंसेप्ट ये सिंप्लीफाई करेंगे. 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर here after simplification 1 plus sin square bracket square into 3 1 plus cos square x bracket square into derivative of 1 plus cos square x. Derivative of 1 is a 0. Derivative of cos square x my 2 cos of x x raised to n. डेरिवेटिव ऑफ cos square x is पहले अप्लाई करना पड़ेगा x raised to n मींस 2 cos of x. फिर से cos of x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. डेरिवेटिव ऑफ cos of x is माइनस sin of x. ये डेरिवेटिव देखो समझ में आ रहा है क्या? मैंने पहले cos square x का डेरिवेटिव लिया 2 cos of x मींस x raised to n का डेरिवेटिव अप्लाई किया. डेरिवेटिव ऑफ x raised to n is n x raised to n minus 1 मींस 2 cos of x. Again take the derivative of cos of x is minus sin x. Then second function means 1 plus cos square x 1 plus cos square x raised to cube into 2 1 plus sin square x, this bracket as it is. Then take the derivative of 1 is 0 and the derivative of sin square x is 2 sin of x into cos of x. 2 sin of x into cos of x. Now see the concept. Y is equal to 1 plus sin square x bracket square and 1 plus cos square x bracket cube. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 plus sin square x into derivative of this bracket is a 3 into bracket 1 plus cos square x bracket square. Then take the derivative of 1 plus cos square x. Derivative of 1 plus cos square x. A second bracket 1 plus cos square x bracket cube into derivative of a first function. Derivative of first function is 2 into the bracket 1 plus sin square x. Then take the derivative of 1 plus sin square x. Then 1 plus sin square x bracket square 3 1 plus cos square x bracket square. यहाँ पे क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ cos square x means x raised to n. 2 cos of x into derivative of cos of x is minus sin of x. Then second bracket ये as it is. यहाँ पे derivative of 1 is a 0. Derivative of sin square x is 2 sin x into derivative of sin is a cos. तो 2 sin x cos x ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है sin 2x. तो मैं आउटसाइड में लिखूंगा sin 2x. sin 2x और यहाँ पे sin 2x है. ये दो ब्रैकेट हम ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं sin 2x और दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? देखो ये देखो 1 plus sin x 1 plus sin square x और 1 plus sin square x ब्रैकेट स्क्वायर. तो 1 plus sin x 1 plus sin square x ये 1 ब्रैकेट मैं कॉमन लेता हूँ. 1 plus sin square x ये ब्रैकेट कॉमन लेना है और दोनों में से यहाँ पे स्क्वायर है और क्यूब है तो मिनिमम कौन सा है? 1 plus cos square x ये कॉमन लेना है. तो कॉमन क्या लेना है? देखो यहाँ पे sin 2x दोनों जगह है. 2 sin x cos x में sin 2x मैंने कॉमन लिया है. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. तो फर्स्ट में माइनस है. तो रिमेनिंग फैक्टर क्या है? यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट कॉमन लिया है. यहाँ पे स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट रहेगा लेकिन वो माइनस है. तो 1 plus sin square x लिखेंगे.
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मैंने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया है और 3 है, तो ये जो 3 है वो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और सेकंड में हमने कॉमन क्या लिया है, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया है, एक ब्रैकेट है लेकिन इसमें से एक ब्रैकेट रिमेनिंग रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो ये मैंने ये कॉमन लिया तो ये दो ब्रैकेट एज इट इज, तो साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी मैं रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखूंगा -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 -3 प्लस 1 -2 आ जाएगा, -2, और -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स। ये और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और कॉस स्क्वायर का आंसर क्या है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन अरे यहाँ पे 2a है, सॉरी यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2 एक रह गया है, ये देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये -3 प्लस 2, यहाँ पे मैं -1 लिखूंगा, -3 प्लस 2 मीन्स -1 आ जाएगा, -1 -3 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे +2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा, +2 कॉस स्क्वायर एक्स, +2 कॉस स्क्वायर एक्स। और एक सिंप्लीफाई करना है इसमें, 2 कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 2 इंटू द ब्रैकेट, नहीं नहीं यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 2 है ना, ये जो 2 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज -3 प्लस 2 मीन्स -1, और हियर -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक स्टेप करके मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, दिस कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और -3 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स, तो -5 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, -5 साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y is equal to under root of cos of x plus cos of root x, then differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। dy by dx is equal to derivative of root x is 1 upon 2 under root of cos of x, 2 under root of cos of x, then take the derivative of cos of x is minus sin of x, take the derivative of cos of x is minus sin of x, then 1 upon root x, derivative of root x is 1 upon 2 under root of cos of root x, लेकिन फिर से हमें cos root x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, फिर से मुझे 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर से मुझे 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे मुझे रूट एफ ऑफ एक्स मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज माइनस साइन ऑफ एक्स, हियर डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 अंडर रूट ऑफ cos of root x, then take the derivative of cos of root x is minus sin of root x again into डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो ये सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, पहले माइनस साइन ऑफ एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा,
डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये जो माइनस साइन है वो ये माइनस साइन यहाँ पे लिखना है, माइनस साइन यहाँ पे लिखना है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा साइन रूट एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 इंटू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ कॉस ऑफ। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन करना है, ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो पहले हम कवर करेंगे। देन नेक्स्ट 8th सम ऑफ एक्सरसाइज y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री। तो ट्रिग्ना डेरिवेटिव में जो m2 है, m2 में अगर हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह करना है, अगर प्रॉब्लम डिग्री में है तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x डिग्री कन्वर्जन x डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री का कन्वर्जन पहले रेडियन में करना है। डेरिवेटिव ऑफ बिफोर टेकिंग द डेरिवेटिव कन्वर्ट द डिग्री टू रेडियन। pi x by 180 upon 1 minus sine of pi x by 180. Convert degree to radian. Convert degree to radian. Now apply the quotient rule. Quotient rule मैंने एक्सप्लेन किया है। क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। मैं डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखूंगा, डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे। dy by dx is equal to denominator is 1 minus sine of pi x by 180 denominator into derivative of numerator. Derivative of 1 is a 0. Derivative of sine cos pi x by 180 into take the derivative of pi x by 180, multiplying factor pi by 180 लिखना है। Multiplying factor is pi by 180. Take the derivative of pi x by 180 is pi by 180. Clear? Then numerator क्या है? 1 plus sine of pi x by 180. 1 plus sine of pi x by 180. Take the derivative of the denominator, derivative of sine, लेकिन वहां पे मीन्स 1 माइनस है, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज अ 0 और ये माइनस साइन मीन्स माइनस साइन एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ साइन इज अ cos pi x by 180 और फिर से मुझे pi x by 180 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ pi x by 180 इज pi by 180। डेरिवेटिव ऑफ pi x by 180 इज pi by 180। ये cos pi x by 180 कॉमन, pi by 180 कॉमन, और ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन ऑफ pi x by 180 ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन देखो क्या करना है। cos pi x by 180, pi by 180 कॉमन है, pi by 180 कॉमन, cos of pi x by 180 कॉमन। तो रेक्टेंगल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल ब्रैकेट में फर्स्ट इज 1 माइनस साइन ऑफ pi x by 180, pi x by
180 और सेकंड में this minus and this minus become plus means plus 1 plus sine of pi x by 180 pi x by 180 डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर किसका है 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 इसका स्क्वायर करना है 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 square. Here plus and minus get cancelled means 1 plus 1 is 2. Final answer is 2 pi by 180 2 pi by 180 into cos of pi x by 180 divided by 1 minus sine of pi x by 180 pi x by 180 bracket square pi x by 180 bracket square. तो यहाँ पे 2 पाई बाय 180 इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 180 ये 2 पाई बाय 180 कैसे लिख सकते हैं पाई बाय 90 तो नुमरेटर में पाई आ जाएगा नुमरेटर में पाई कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 180 पाई एक्स बाय 180 और डिनोमिनेटर में 90 है डिनोमिनेटर में 90 आ जाएगा 90 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 pi x by 180 bracket square pi x by 180 bracket square. Next problem. नेक्स्ट हम 10th सम लेंगे 10th सम एक्सरसाइज का ये 10th सम है 1.1 का y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है ये समझ में आना चाहिए हियर यू हैव टू अप्लाई द क्वोशंट रूल क्वोशंट रूल क्या है क्वोशंट रूल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है सपोज y इज इक्वल टू u बाई v है इफ द y इज इक्वल टू द u बाई v देन quotient rule is a denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator square. तो क्वोशंट रूल क्या आएगा देखो यहाँ पे क्वोशंट रूल dy बाई dx पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो लिखना ही है हर एक प्रॉब्लम में मैं नहीं लिखता हूँ लेकिन लिखना है e रेज टू पावर डिनोमिनेटर e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x into derivative of numerator. Derivative of numerator is 2 e raised to power 2x और ये जो है माइनस माइनस बिकम प्लस 2 e raised to power minus 2x. मैंने डेरिवेटिव लिया कैसे वो एक्सप्लेन करूंगा डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x इज e raised to 2x का डेरिवेटिव आएगा e raised to 2x लेकिन फिर से मुझे 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फिर से मुझे 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 2 और यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो मैंने ये माइनस माइनस बिकम प्लस डायरेक्ट लिखा है डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है प्लस नुमरेटर नुमरेटर एज इट इज नुमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 e रेज टू पावर
2x. Derivative of e raised to 2x is e raised to 2x into 2 means 2 e raised to power 2x. माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि e रेस टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e रेस टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस 2 e रेस टू पावर माइनस 2x, माइनस 2 e रेस टू पावर माइनस 2x. और डिनोमिनेटर में ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट एज इट इज लिखना है और ये ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे कितना लिखना है, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर. तो अभी क्या करेंगे, ये देखो यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये दो ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x. ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे क्वोशंट रूल में माइनस है, यहाँ पे क्वोशंट रूल में यहाँ पे माइनस है. हाँ क्वोशंट रूल में माइनस है. हाँ डिनो यहाँ पे माइनस साइन है और ये 2 कॉमन लेता हूं, e रेस टू पावर 2x, e रेस टू पावर 2x माइनस e रेस टू पावर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर. ये लिखना है. लास्ट स्टेप में मैंने सिर्फ ब्रैकेट किया था, लेकिन वो ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ से टोटली 2 कॉमन ले सकते हैं, टोटली 2 कॉमन ले सकते हैं. टोटली मैंने 2 कॉमन लिया. a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करना है, तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो e रेस टू पावर 4x प्लस 2 इंटू ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x. तो ई रेस टू कितना होगा, 0. ई रेस टू 0 इज 1. मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे देखो 2ab मींस ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x. ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x, ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 इज 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस 4x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 4x. यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट पहले एक्सपांड करना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो पहला स्टेप कितना होगा, e रेस टू पावर 4x, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस e रेस टू पावर 4x होगा. यहाँ पे मिडल में क्या आ जाएगा, माइनस 2 e रेस टू 2x इंटू e रेस टू पावर माइनस 2x. e रेस टू 2x इंटू e रेस टू पावर माइनस 2x मींस e रेस टू 0, e रेस टू 0 इज 1. मिडल में माइनस आ जाएगा, लेकिन ये माइनस से अगर हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और e रेस टू 0 इज 1. और थर्ड स्टेप में प्लस आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हाँ तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं माइनस प्लस लिखूंगा e रेस टू पावर 4x, लेकिन माइनस आउटसाइड है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. डिनोमिनेटर में e रेस टू पावर 2x, e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर, e रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर. तो कैंसिल क्या करना है, कैंसिल क्या करना है, ई रेस टू पावर 4x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 4x. तो ये ई रेस टू 4 और ई रेस टू 4 कैंसिल हो जाएगा, ई रेस टू पावर और ये ई रेस टू पावर कैंसिल हो जाएगा. 2 प्लस 2 कितना होगा, 4. यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 मीन्स 4, 2 प्लस 2 इज 4 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 अपॉन e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर, e रेस टू पावर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर. हाँ तो यहाँ पे हमने फाइनल आंसर मैंने ये लिखा है 8 अपॉन 8 e रेस टू 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x ब्रैकेट स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e रेस टू पावर माइनस 2x इज 1 अपॉन e रेस टू पावर 2x. तो यहाँ पे कितना आएगा, e रेस टू पावर 4x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x ब्रैकेट स्क्वायर मींस e रेस टू पावर 4x. तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 8 e रेस टू पावर 4x अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये एज इट इज आंसर लिख सकते हैं. अभी नेक्स्ट वीडियो में
इसके आगे के जो सम है वो मैं अपलोड करूंगा।